So, hello everyone. We will discuss in this lecture the topic called memory interfacing. Till now, we have covered the logic devices which are used for the interfacing purpose. For example, tri-state devices, buffer, decoder, encoder, and D flip-flop. So, we have discussed about these logic devices which can be used for the interfacing purpose. Now we will see how the memory is interfaced with the microprocessor to transfer the data. Okay, so we start with the topic memory interfacing. Memory interfacing क्या होता है? What is memory interfacing? We have understood the meaning of interfacing. Now memory interfacing. तो memory interfacing का मतलब क्या हुआ? Actually हमने अभी तक जितना माइक्रो प्रोसेसर स्ट्रक्चर को समझा है और इसके ऑपरेशंस को समझा है, तो वी हैव सीन दैट माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स with the memory frequently in order to execute a program. So microprocessor needs to access the memory frequently. Okay, and interfacing devices make this access possible. तो अगर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर को एक दूसरे से इंटरैक्ट या कम्युनिकेट करने के लिए मेमोरी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स मेमोरी की फुलफिल होती हैं, देन द डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी, और माइक्रो प्रोसेसर भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ सेट ऑफ सिग्नल्स को जनरेट करता है. तो इस तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसिंग डिवाइसेस. सो इंटरफेसिंग प्रोसेस involves designing a circuit that will match memory requirements with microprocessor signals. और वो जो सर्किट को डिज़ाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिंग सर्किट. तो इंटरफेसिंग सर्किट को समझने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरी. तो मेमोरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड this topic, but since we are discussing about memory interfacing, so we are going to recall about memory structure and its requirements. तो यहाँ पे दो मेमोरी के स्ट्रक्चर्स हैं. फिगर A is for RAM and figure B is for EPROM. So if we talk about figure A, that is logic diagram for RAM, and it describes the memory structure of RAM and its requirements. So what is RAM? RAM is random access memory or read write memory. Okay, यहाँ पे प्रोग्राम या डेटा स्टोर कर सकते हैं और यूजर कैन प्रोग्राम दिस मेमोरी, यूजर कैन read or write in this memory. Okay, so this is the example of a read write memory, and the size is indicated by 2048 cross 8. What does it means? It means that, as we know that a read write memory is group of registers. So how many number of registers are here? So the number of registers are 2048. This number is indicating the number of registers or number of memory locations in this read write memory. So there are 2048 or 2048 number of registers there in this read write memory actually. And cross 8, what does it mean? 8 का क्या मतलब है यहाँ पे 8 का ये मतलब है कि each register can store 8 bit data. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एक रजिस्टर को मेंशन करें तो वन रजिस्टर कैन स्टोर 8 बिट डेटा. ओके, so this is the meaning of, actually this is representing the memory size, that is 2048 cross 8. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस 2048 है और एक लोकेशन
8 नंबर ऑफ बिट्स को या 1 बाइट को स्टोर कर सकता है। तो अब अगर हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस? We know this relation, that is capital N equal to 2 to the power small n. So what is capital N? Capital N is the number of registers and small n is the number of address lines. So if you put number of registers in this formula, then we can know the number of address lines. That will come 11. 2 to the power 11 will be equal to 2048. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस जो यूज किए गए हैं दे आर 11 इन नंबर्स A0 to A10. Total number of 11 address lines are there. Okay. Or since one register can store 8 bit of data, so for that purpose 8 input and output data lines here are used. These are the data lines actually. यहाँ पे जो mention है input data and output data, these are representing the data lines which are 8 in numbers. Okay. तो एड्रेस लाइंस की बात कर ली हमने, डेटा लाइंस की बात कर ली, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक मेमोरी की, स्पेशली रैम की और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सो देयर आर इनपुट बफर, आउटपुट बफर. तो आउटपुट बफर इज यूज्ड टू आउटपुट बफर का क्या काम है? जब डेटा को रीड करना होता है, व्हेन द रीड ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, देन this read control signal enables the output buffer, and when the write operation is to be performed, then this write control signal enables the input buffer. तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 11 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस यहाँ पे हैं इस मेमोरी के लिए, और 8 नंबर ऑफ डेटा लाइंस हैं, और कंट्रोल सिग्नल्स हैं, एक रीड कंट्रोल सिग्नल एंड राइट कंट्रोल सिग्नल. सो रीड कंट्रोल सिग्नल इनेबल्स द आउटपुट बफर and then read operation can be performed, and write control signal enables the input buffer to perform the write operation. इसके अलावा यहाँ पे एक चिप सेलेक्ट सिग्नल भी यूज किया गया है to enable the memory chip or to select the chip. One chip select signal is also required. Okay. और यहाँ पे इंटरनल डिकोडर का भी यूज किया गया है. तो what is the function of internal decoder? So internal decoder decodes the address present on these address lines and identifies or select the corresponding register. So internal decoder is used for that purpose. तो ये तो लॉजिक डायग्राम फॉर रैम हो गया, रैम का एक मेमोरी स्ट्रक्चर और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी अबाउट EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो इस EPROM की जो साइज है दैट इज 4096x8, 4096x8. तो इस EPROM में कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं? 4096 number of registers are there, and each register can store 8 bit or 1 byte. तो 4096 number of registers के लिए कितने number of address lines की requirement होगी? Same we can use this formula to calculate the number of address lines, and from this formula we can see that number of address lines which are required for this EPROM are 12, indicated by A0 to A11. Okay. And since each register can store 8 bit and this is EPROM, we can perform the read operation
and to perform the read operation it is necessary that this EPROM should be programmed. पहले से ये प्रोग्राम्ड हो तभी तो इसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, तो ये पहले से प्रोग्राम होना जरूरी है। और रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 8 नंबर ऑफ आउटपुट डेटा लाइंस का यूज किया गया है यहाँ पे। तो देयर आर 8 नंबर ऑफ लाइंस, डेटा लाइंस। और इसमें रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, सो ओनली द रीड कंट्रोल सिग्नल इज रिक्वायर्ड हियर which enables the output buffer to perform the read operation, and a chip select signal is also required to select this memory chip, and this is the quartz window which is used for exposing this memory chip to the ultraviolet rays to erase this memory. ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जिसको यूवी रेज की सहायता से इरेज किया जा सकता है। सो फॉर दैट पर्पज दिस विंडो इज यूज्ड। ओके, सो इस EPROM की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो गई। ये जो साइज है 4096x8, इस EPROM की टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो 12 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हो गई, 8 नंबर ऑफ डेटा लाइंस एंड 1 रीड कंट्रोल सिग्नल एंड 1 चिप सेलेक्ट सिग्नल। ठीक है, और इसमें भी इंटरनल डिकोडर का यूज किया गया है टू डिकोड द एड्रेस अवेलेबल ऑन दीज एड्रेस लाइंस and to identify that particular register to perform the read operation. Okay, so now we can discuss basic concepts in memory interfacing. अच्छा, माइक्रो मेमोरी की मेमोरी का मतलब क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेमोरी, क्या प्राइमरी फंक्शन। मेमोरी इस तरह से होनी चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से रीड कर सके और इसमें राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सके, अगर वो रीड राइट मेमोरी है तो। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एबल टू सेलेक्ट द चिप, इट शुड आइडेंटिफाई द रजिस्टर एंड इट शुड इनेबल द एप्रोप्रिएट बफर। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले तो चिप को सेलेक्ट कर सके, चिप सेलेक्ट करने के बाद देयर आर सेवरल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो किस रजिस्टर से डेटा को ट्रांसफर करना है या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, माइक्रो प्रोसेसर उस रजिस्टर को आइडेंटिफाई कर सके। देन माइक्रो प्रोसेसर को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन, सो इट शुड इनेबल द एप्रोप्रिएट बफर। एप्रोप्रिएट बफर मीन्स आइदर इनपुट बफर to perform the write operation or the output buffer to perform the read operation. तो माइक्रो प्रोसेसर ये सारे काम इजीली कर सके, तो इसके लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स हैं अभी हमने जो देखा वो फिल होनी चाहिए, एंड माइक्रो प्रोसेसर शुड ऑल्सो जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स। तो अगर इसको हम समराइज करें कि टू इंटरफेस मेमोरी विथ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट विल बी द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करने के लिए। तो इन स्टेप्स को समझने के लिए अगर हम एक बार अपने जो टाइमिंग डायग्राम हमने पढ़ा था मेमोरी रीड साइकिल का और मेमोरी राइट साइकिल का, अगर उसको रिकॉल करें तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी द स्टेप्स टू इंटरफेस मेमोरी विथ माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर रिकॉल करें और इसी एग्जांपल को हम लेके चलें कि 2048x8 ये जो साइज का जो रीड राइट मेमोरी है, सपोज कि इस मेमोरी से डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो अगर इनमें से 2048 नंबर ऑफ रजिस्टर्स में से किसी एक रजिस्टर से कोई डेटा वहाँ पे स्टोर्ड है और उस रजिस्टर से अगर माइक्रो प्रोसेसर को डेटा को रीड करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या ऑपरेशंस कैसे कैसे परफॉर्म करता है, कौन कौन से स्टेप्स को पहले, किस स्टेप को पहले फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो प्रोसेसर
places the 16-bit address lines on the address bus and transfers it to the memory with the help of these address lines. तो ये जो मेमोरी है इसकी साइज 2048 है क्रॉस 8 और इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स की जो एड्रेस लाइंस की जो रिक्वायरमेंट है वो 11 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है. तो जो इस मेमोरी की 11 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन से टोटल नंबर ऑफ लोअर ऑर्डर 11 एड्रेस लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए. ठीक, तब ये पॉसिबल है कि माइक्रो प्रोसेसर उन एड्रेस लाइंस पे एड्रेस को सेंड करे और दैट एड्रेस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल डिकोडर. तो जो एड्रेस लाइंस हैं इस रीड राइट मेमोरी की दैट शुड बी कनेक्टेड विद द एड्रेस लाइंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. ठीक, उसके बाद क्या होता है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रजिस्टर व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट स्टेप. सो इन द नेक्स्ट स्टेप माइक्रो प्रोसेसर generates the appropriate control signal. In this example we are discussing about the read operation. So microprocessor will generate the memory read control signal with the help of IO M bar and read. इन दोनों सिग्नल्स की सहायता से माइक्रोप्रोसेसर विल जनरेट द मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल एंड यहाँ पे जो रीड सिग्नल है मेमोरी का जो मेमोरी रीड सिग्नल है माइक्रो प्रोसेसर का दैट शुड बी कनेक्टेड हियर टू द रीड सिग्नल. इन दिस वे memory will get the read signal and the output buffer will be enabled and the data will be available on the data bus. तो ये काम हो जाता है T2 वाले साइकिल में. ठीक है, मेमोरी रीड सिग्नल में 3 नंबर ऑफ टी स्टेट्स होते हैं. तो जो T1 में जो एड्रेस है दैट एड्रेस इज आइडेंटिफाइड. T2 में क्या होता है जो डेटा है वो डेटा बस पे अवेलेबल हो गई, आउटपुट बफर इनेबल हो गया, रीड सिग्नल एक्टिवेट हो गया तो डेटा अब आउटपुट बफर में इनेबल है. उसके बाद क्या होता है व्हाट विल बी इन द लास्ट टी स्टेट दैट इज इन T3. T3 में क्या होगा T3 में जो डेटा बस पे अवेलेबल है दैट विल बी read बाय द माइक्रो प्रोसेसर with the help of data lines. तो इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ठीक है, तो उन्हीं स्टेप्स को अगर रिकॉल करें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि टू इंटरफेस मेमोरी विथ माइक्रो प्रोसेसर व्हाट द मेजर ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड. तो पहला स्टेप ये है कि कनेक्ट required address lines of the address bus to address lines of memory chip. In this way the specific register will be identified. ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे था कि इन एड्रेस लाइंस का यूज हमने किया रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए और ये एड्रेस लाइंस माइक्रो प्रोसेसर के लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस के साथ कनेक्ट होनी चाहिए. तो माइक्रो प्रोसेसर में टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होती है 16 लाइंस होती है टोटल. तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एड्रेस लाइंस जो A11 से A15 तक एड्रेस लाइंस हैं उनका क्या यूज होगा. सो दैट रिमेनिंग एड्रेस लाइंस विल बी यूज्ड टू विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसिंग सर्किट टू सेलेक्ट द चिप. वो जो रिमेनिंग एड्रेस लाइंस हैं उनका यूज होगा इस मेमोरी चिप को सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है, so that is the next point here. Decode remaining address lines of address bus. यहाँ पे एड्रेस बस का मतलब है 8085 के एड्रेस बस से to generate chip select signal. So in this way the memory chip will be selected or enabled with the help of the remaining address lines. Okay, and using interfacing device. फिर क्या होगा generate control signals and use them to enable appropriate buffers. For example, if it is memory read operation then microprocessor will generate the memory read control signal with the help of IO with the help of
आई ओ सॉरी आई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई यू या एम बार। ये इंडिकेट करता है पिन कि कौन सा ऑपरेशन है, मेमोरी से रिलेटेड है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो इन दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करके माइक्रो प्रोसेसर कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MEMR। ठीक है। और अगर ऑपरेशन राइट ऑपरेशन है तो IO M बार और राइट कंट्रोल सिग्नल का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर विल जनरेट MEMW, that is called memory write control signal. Okay, so the memory read control signal will enable the output buffer and the read operation can be performed, and memory write signal enables the input buffer, so the memory write operation can be performed. So these are the steps to interface memory with the microprocessor. अब हम नेक्स्ट इंटरफेसिंग टॉपिक में ही, मेमोरी इंटरफेसिंग टॉपिक में ही नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रेस डिकोडिंग। सो व्हाट इज द एड्रेस डिकोडिंग? तो मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग इज टू असाइन एन एड्रेस फॉर ईच लोकेशन इन मेमोरी चिप, and it should result in identifying a register for a given address. Memory address can be decoded in two ways. तो एड्रेस डिकोडिंग का मतलब क्या है? सिंपल, एड्रेस डिकोडिंग का मतलब है यहाँ पे कि जो फॉर एग्जांपल इस रीड राइट मेमोरी में 2048 नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा इन बाइनरी फॉर्मेट। तो उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ दिस डिकोडर इज कॉल्ड एड्रेस डिकोडिंग। और वो रजिस्टर जो आइडेंटिफाई होगा उसमें वो उसका एड्रेस का होगा, उसका एड्रेस 16 बिट का होगा ना, तो उसमें जितने भी एड्रेस लाइन्स हैं 8085 के, चाहे वो चिप सेलेक्ट सिग्नल में यूज हो रहे हों, चाहे वो A0 to A10 दैट इज एड्रेस लाइन्स के लिए ये यूज हो रहे हों, तो उन सारे सिग्नल्स का यूज करके उस मेमोरी चिप का जो उस मेमोरी चिप के करस्पॉन्डिंग रजिस्टर का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस डिकोड होगा। ठीक है, जिससे कि वो मेमोरी रजिस्टर सिलेक्ट हो सके। तो मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग result in identifying a register for a given address। और ये दो तरीकों से किया जा सकता है। मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग दो तरीकों से किया जा सकता है। इसको हम लोग आगे एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। अभी हम लोग बस ये समझ लेते हैं कि ये दो तरीके कौन कौन से हैं। तो दो तरीके जो हैं वो हैं एब्सोल्यूट डिकोडिंग, एक तो तरीका है एब्सोल्यूट डिकोडिंग, दूसरा तरीका है पार्शियल डिकोडिंग का। तो एब्सोल्यूट डिकोडिंग में क्या होता है कि हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि देखिए अगर वो मेमोरी की साइज पे डिपेंड करता है कि उसके रजिस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो जितने भी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस को मेमोरी के जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर के लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन से कनेक्ट किया जा सकता है, और जो बचे हुए रिमेनिंग हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं उनका यूज चिप सेलेक्ट सिग्नल के लिए किया जा सकता है। तो ये बात हो रही है ऑल हायर एड्रेस लाइंस की। ऑल हायर एड्रेस लाइंस आर डिकोडेड टू सेलेक्ट द मेमोरी चिप। ये एब्सोल्यूट डिकोडिंग मेथड में ऐसे करता है। अगर हम पार्शियल डिकोडिंग की बात करें तो ऑल द हायर एड्रेस लाइंस आर नॉट यूज्ड बट few higher address lines are decoded to select the memory chip। ठीक है, और इस तरह से अगर एब्सोल्यूट डिकोडिंग की बात करें इसमें सारे एड्रेस लाइंस का यूज किया जा रहा है, तो इसमें जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा तो हर मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा। और अगर बात करें पार्शियल डिकोडिंग की तो पार्शियल डिकोडिंग में हर मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो एक एड्रेस के अलावा कुछ और भी एड्रेसेस हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेमोरी फोल्ड बैक। ठीक है, और एब्सोल्यूट डिकोडिंग में क्या होता है, एब्सोल्यूट डिकोडिंग में
नंबर ऑफ हार्डवेयर्स जो यूज हो रहे हैं वो more hardware is required to design decoding logic, while in partial decoding hardware required to design the decoding logic is less. इसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। तो अगर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम है तो पार्शियल डिकोडिंग में जो कैसा होगा, सिंपल होगा और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। और इसके अपोजिट एब्सोल्यूट डिकोडिंग में सिंस मोर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, सो एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव। और एब्सोल्यूट डिकोडिंग जो है वो एब्सोल्यूट डिकोडिंग जो है वो लार्ज सिस्टम्स में यूज होता है और पार्शियल डिकोडिंग जो है वो स्मॉल सिस्टम्स में यूज होता है। तो जो हमने भी ये एड्रेस डिकोडिंग टेक्निक्स की बात की, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में समझते हैं। एक ये एग्जांपल है मेमोरी इंटरफेसिंग का कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेसिंग द 2732 EPROM। EPROM को किस तरह से इंटरफेस करना है, ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे कि हाउ द मेमोरी कैन बी इंटरफेस्ड विद द 8085 माइक्रोप्रोसेसर। देखिए ये जो EPROM है 2732 EPROM एंड इसकी साइज जो है 4096x8। इसमें कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, 4096 नंबर ऑफ लोकेशंस आर देयर। सो इन रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए कितने एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वी कैन कैलकुलेट by the formula 2 to the power small n equal to capital N and the number of address lines required are 12, जिसको A0 से A11 तक रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। 12 number of address lines are required to address the 4096 registers। अब देखिए ये जो A0 से A11 एड्रेस लाइंस मेमोरी चिप के हैं, तो these address lines of the memory chip should be connected to the address lines of the microprocessor। तो माइक्रोप्रोसेसर में जो A0 से A11 एड्रेस लाइंस हैं उनसे मेमोरी चिप के ये एड्रेस लाइंस कनेक्ट होने चाहिए, ठीक। अब माइक्रोप्रोसेसर के जो रिमेनिंग एड्रेस लाइंस हैं A12 से A15, टोटल 16 होते हैं, तो रिमेनिंग कितने में, A12 से A15, तो दैट एड्रेस लाइंस विल बी यूज्ड टू सेलेक्ट दिस मेमोरी चिप। तो यहाँ पे देखिए with the help of decoder these address lines of microprocessor A12 to A15 address lines are used with the help of this decoder to select the chip or to enable the chip। कैसे यूज किया गया है, देखिए यहाँ पे 3 to 8 डिकोडर का यूज किया गया है। हमने पढ़ा था कि डिकोडर इज अ इंटरफेसिंग डिवाइस, ओके। तो 3 to 8 डिकोडर का यूज किया गया है। 3 to 8 डिकोडर में नंबर ऑफ इनपुट लाइंस की रिक्वायरमेंट 3 होती है, तो A12, A13 और A14 इसके इनपुट लाइंस की तरह यूज किए गए हैं एंड A15 इज यूज्ड टू इनेबल दिस डिकोडर। अच्छा, इस डिकोडर को इनेबल करने के लिए ये A15 लाइन पे 0 या लो सिग्नल होना चाहिए क्योंकि ये एक्टिव लो है। सिमिलरली E2 भी यहाँ पे लो होना चाहिए, दैट इज ग्राउंडेड हियर, दिस इज ऑल्सो एक्टिव लो। एंड E3 पे क्या होना चाहिए, इट इज एक्टिव हाई, सो इट शुड बी कनेक्टेड टू +5 वोल्ट। तो इस तरह से ये 3 to 8 डिकोडर इनेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए डिकोडर का जो आउटपुट पिंस कितने होंगे, टोटल O0 से लेके O7 तक होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक को रिप्रेजेंट किया गया है, देयर विल बी टोटल 8 नंबर ऑफ आउटपुट पिंस, ठीक है। और ये जो आउटपुट पिंस हैं दैट आर दीज पिंस आर एक्टिव लो, यहाँ पे बबल से शो किया गया, ठीक है। तो ये O0 से कनेक्टेड है मेमोरी चिप का इनेबल पिन। तो ये कब इनेबल होगा मेमोरी, व्हेन द O0 आउटपुट विल बी एक्टिवेटेड एंड सिंस दिस इज एक्टिव लो देन ओनली दिस मेमोरी चिप कैन बी सेलेक्टेड और इनेबल्ड। तो यहाँ पे बताइए कि ये जो O0 आउटपुट लाइन है ये कब एक्टिवेट होगा, व्हेन there will be 000 combination on these input lines, then only this O0 output line will be activated and this memory chip will be enabled or selected, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी चिप सेलेक्ट हो गया। अब मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट करता है माइक्रोप्रोसेसर, बाय कंबाइनिंग रीड कंट्रोल सिग्नल एंड IUMR कंट्रोल सिग्नल। द मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल इज जनरेटेड बाय 8085 माइक्रोप्रोसेसर
और ये जो सिग्नल है किससे कनेक्टेड है, इसके ओ ई बार से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज सिमिलर टू आर डी बार। तो हम यहाँ पे आर डी बार भी लिख सकते हैं। तो इस पिन से, मेमोरी के इस पिन से 8085 का मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल कनेक्टेड है, ठीक है। और सिंस ईच नंबर ऑफ लोकेशन कैन स्टोर 8 बिट और ये रोम है, तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लाइंस का यूज किया गया है दैट आर 8 इन नंबर। तो अब इसके अगर हम लोग टोटल एड्रेस रेंज की बात करें, टोटल एड्रेस रेंज की बात करें तो A15, A14, सिमिलरली यहाँ पे A13 होगा बीच में और A12 होगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A13। इसके अलावा जो रिमेनिंग लाइंस हैं A11 से A0 तक दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई रजिस्टर, A11 से A0 तक। तो अगर रेंज की बात करें तो ये जो एड्रेस लाइंस हैं A15 से लेके A12 तक, दीज आर बीइंग यूज्ड टू सेलेक्ट द चिप। तो इनका जो लॉजिक है वो हमेशा फिक्स होगा, तभी वो इनेबल हो पाएगा चिप। तो इन पे क्या लॉजिक होना चाहिए, A12, 13 और 14 पे तो देयर शुड बी ऑलवेज 0, तभी आउटपुट सिग्नल जो O0 है वो एक्टिव होगा। और A15 पे भी 0 ही होना चाहिए सिंस दिस इज एक्टिव लो। तो इस तरह से अगर ये इन चारों लाइंस पे 0 0 0 0 होगा देन ओनली द चिप कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो अगर हायर सबसे लोएस्ट एड्रेस की बात करें या सबसे हाईएस्ट एड्रेस की बात करें तो दिस इज फिक्स 0 0 0 0 ऑन दीज एड्रेस लाइंस। और अगर A0 से A11 की बात करें तो दीज लाइंस आर यूज्ड टू सिलेक्ट द मेमोरी रजिस्टर्स। तो these can take any combinations between all zeros to all ones, ठीक है, all ones। तो इस तरह से क्या एड्रेस बनेगा अगर हेक्साडेसिमल में लिखा जाए तो यहाँ पे हम 0 0 को लिख सकते हैं 0 0 0 0 H, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 हो गया और जो वंस हैं उनको लिखा जा सकता है F F F। यहाँ पे होंगे कितने नंबर ऑफ वंस होंगे, टोटल 12 है ना, तो 4 4 और 4, तो इनको लिख सकते हैं 0 F F F 0 F F F H। तो इस तरह से जो इस मेमोरी का मैप होगा, जो रेंज होगा वो 0 0 0 0 से लेके 0 F F F H तक होगा, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेस रेंज होगा इसमें, okay। So in this way we have seen that how 2732 EPROM can be interfaced with the 8085 microprocessor। इसके आगे का जो टॉपिक है एक और एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।